All right. So in the last class, what we were done with were enzymes. So we decided that we would get done with the next chapter before we start off with the worksheet for this. अच्छा, अब एक चीज देखिएगा कि हमारे पास the next chapter that we have is biological molecules, right? अच्छा, अब लेकिन what we are going to do is we are also going to include nutrition in let's say in mammals in this particular chapter. Basically हमारे पास जो digestive system वाला chapter है हम उसे include करेंगे. All right. Now, whenever we talk about biological molecules, सबसे पहली बात ये आती है कि sir, what do you even mean by the word biological molecules? Uh, we basically talk about nutrients, right? Nutrients हमारे पास क्या होता है? What do you think are nutrients? अगर मैं कहूं कि भाई मेरे पास एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है या फिर मेरे पास लेट्स से if I have something that I am calling as a nutrient. So how would you define nutrients? Nutrients क्या होता है? Any idea? हाँ जी. What do you think are nutrients? So Zainab said that protein is an example of nutrient. Anything else? और कोई चीज? Fats, carbs. Say yeah. So let me put it this way. So fats, carbohydrates, lipids, proteins, they're all nutrients, vitamins, mineral ions. लेकिन करते क्या है? What do these what do these nutrients do? So substance in foods that gives us nourishment, very good. Substance needed for needed by the body to growth, very good, very good, very good. ठीक है. अगर हम whatever you guys are telling me, अगर हम अब उसको concise करके लिखें, so can we say nutrients are chemicals that provide us with what? With energy and are needed for what? For both physical and कैसी वाली well-being जो सबकी खराब है हमारे पास mental, right? एंड मेंटल वेल-बीइंग. देखो वेल-बीइंग का मतलब क्या हुआ, या हम वेल-बीइंग के अलावा हम लोग हेल्थ भी लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस? मैंने कहा भाई मेरे पास कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं which are concerned with just one function. They're providing me with energy so that I can carry out the chemical processes. I can carry out physical processes, for example, movement, right? For example, locomotion. उसके अलावा they are also needed for what? For my physical and mental well-being. Let me give an example. I have this substance that we call as vitamin D. अब मेरे पास vitamin D, if I'm going to take it in my diet, vitamin D is not going to help me with my, and with, it's not going to give me energy basically. लेकिन अगर ये मेरी डाइट में नहीं होगा, as an adult, my bones are going to start becoming porous. उनके अंदर pores आना शुरू हो जाएंगी and they're going to become weak. They won't be able to, sustain that much, let's say, weight as they could before. अगर यही विटामिन डी बच्चों के अंदर कम हो जाएगा, so उनकी जो बोन्स होंगी वो टूटेंगी तो नहीं, वो बेंड हो जाएंगी, राइट? अगर मेरी डाइट के अंदर sodium ions, potassium ions कम हो जाए, it's going to lead to different neurological problems, right? अगर मेरे पास vitamin B12 कम हो जाए, तो again it's going to lead to different mental disorders. तो कहने का मकसद क्या हुआ कि भाई हमारे पास वो substances जो सिर्फ हमें एनर्जी नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम न्यूट्रिएंट्स. मेक सेंस? यहां तक बात समझ में आ रही है? Acha. Now, why do we include nutrients in, let's say, in the category of what we call as biological molecules? Is because biological molecules होते क्या? Let's, let this out first. वो substances जिनकी वजह और जिनसे मैं एक organism बना सकता हूँ, those are called as biological molecules. We will be talking about a list of about 8 biological molecules.
लेकिन हम लोग देखेंगे कि देखो सारे होना लाजमी नहीं है एक ऑर्गेनिज्म के लिए, बट यस एटलीस्ट वन और टू शुड बी देयर सो दैट यू कैन हैव एन ऑर्गेनिज्म। हम लोग यहाँ आर्ट लिस्ट करेंगे एंड लेट्स से वी टॉक अबाउट viruses आर नॉट लिविंग ऑर्गेन, वी डोंट कंसीडर देम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर एसेल्युलर। लेकिन उनके अंदर भी आउट ऑफ द 8 दैट वी गोइंग टू लिस्ट डाउन, दो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही होंगे, राइट? अच्छा, अगर इंस्टेड ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम लोग अगर एक न्यूट्रिएंट्स की भी लिस्ट बना लें, इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स भी इंक्लूड कर लें, सो वी गोइंग टू लिस्ट देम डाउन फर्स्ट, फिर हम उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट में कौन आता है? सबसे पहले लिस्ट में आता है हमारे पास carbohydrates. I'm just going to move it down a bit. ठीक है, I might need a space at the top. Carbohydrates के अलावा what other nutrient do we have? We have fats and lipids. Both of them are the same. हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो we'll get to know about them. The third nutrient that we have or that we will be talking about are going to be proteins. जो चौथा न्यूट्रिएंट है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? दे आर गोइंग टू बी, जिनके बारे में हम लोग इस वाले चैप्टर में बात नहीं करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट देम इन इनहेरिटेंस, polynucleotides. We'll talk about vitamins after proteins. We'll be talking about mineral ions. We'll talk about fiber when we'll talk about digestion. And lastly, we also have water. ठीक है? अच्छा, अब out of all of these let's say nutrients that we have listed, what I am more concerned about are the first four. ठीक है, तो शुरू के चार है ना, I want to know about them first. ठीक है, the first four substances that we've marked, इनके बारे में हमें दो बातें बतानी चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि नंबर वन, all of them are what? They are polymers. Can anyone tell me what a polymer is? Polymer क्या होता है? How would you define a polymer? Does anyone know what a polymer is? Anyone? Poly का मतलब very good Zainab, it means many. Long chain structures, very good. ठीक है. Anything else? Many glucose, जरूरी नहीं है glucose हो. देखो देखो, let's put it this way, हम लोग उसको नीचे देखते हैं. मैंने कहा मेरे पास एक वॉल जो है ना, let's say भाई there's a wall behind me, right? So that wall is a polymer. पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर, और अगर हम लोग इसकी यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दें, पॉलीमर इज अ large compound made when many smaller molecules are joined up. कैसे? केमिकली। ठीक है, सो मेरे पास एक लार्ज सब्सटेंस है, एक लार्ज कब मॉलिक्यूल है, जो कैसे बन रहा है और कब बन रहा है? जब मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ज्वाइन अप हो रहे हैं and by undergoing a chemical reaction again. So again we are taking an example of a wall, right? We're taking an example of a wall. तो हमारे पास ये जो पीछे मेरे वॉल रखी है, जब कंस्ट्रक्शन कंपनी when they would be making this room, did they bring the whole wall? वालेकुम अस्सलाम बेटे. So did they bring the whole wall? नहीं, ऐसा नहीं होता। व्हेनेवर बिल्डिंग्स आर मेड, कंस्ट्रक्शन कंपनी पूरी की पूरी दीवार उठा के लेकर नहीं आ रही होती है। वो क्या लेकर आते हैं? दीवार किससे बनती है? हाँ भाई, bricks, very good. So what do they do basically? They join up many bricks together. And what happens is, I'm using a cementing material, ठीक है? And it gives me a single wall.
So many bricks are only giving me a single wall. Make sense? तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं which are called as mono. मोनो का मतलब सिंगुलर, मोनोमर्स. जब बहुत सारे when many monomers join up together, chemically they give rise to a what? Polymer. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Do we understand this, guys? All right, good enough, good enough. ठीक है. अच्छा, अब एक और चीज देखो बिफोर वी मूव ऑन. तो भाई हमने कहा अगर सिंगल मॉलिक्यूल होगा इट वुड बी अ मोनोमर. अगर बहुत सारे होंगे तो वो क्या होगा मेरे बच्चों? पॉलीमर. ठीक है. लेकिन व्हाट इफ मैं सिर्फ दो मोनोमर्स को ज्वाइन अप कर दूं, मैं सिर्फ दो मोनोमर्स को ज्वाइन अप कर दूं, फिर मुझे क्या मिलेगा बच्चों लोग? व्हाट वुड आई गेट नाउ? छोटा पॉलीमर. आई वुड बी गेटिंग, अच्छा मुझे बताओ, डाई समथिंग, आई वुड बी गेटिंग अ डाइमर. ठीक है. डाई का मतलब क्या होता है? टू. दिस इज मेक सेंस? ये वाली बात समझ में आ रही है? गुड गुड. ठीक है. अच्छा पहली बात तो ये हो गई. ठीक है. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ पॉलीमर, मोनोमर की भी लिख देता हूं मैं. सो व्हाट्स अ मोनोमर? मोनोमर आर small molecules that chemically join up to form a polymer. ठीक है. So if you want to take a picture of it, if you want to take a screenshot, please go ahead. Okay, now तो पहली बात क्या हो गई बेटे? ये जो चारों मॉलिक्यूल्स है ना हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? दे आर व्हाट? दे आर पॉलीमर्स. दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स. ऑल राइट. पहली चीज. दूसरी चीज, all of them are considered to be कौन से वाले मॉलिक्यूल्स? Organic molecules. That these substances are going to be found in organisms. You can't just find them in non-living things. The organic let's say organisms से मिलेंगे. That's why we're calling them organic. ठीक है. uh, Organic molecules are usually made, or rather are made up of, or are hydrocarbons. Hydrocarbons क्या होते हैं मेरे बच्चों? Hydrocarbons are those molecules which are majorly made up of carbon and hydrogen. कि उनके अंदर एलिमेंट्स कौन से वाले ज्यादा होंगे? कार्बन होगा उनके अंदर और हाइड्रोजन होगा. दूसरे एलिमेंट आ सकते हैं लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन, ये दोनों चीजें, ये दोनों एलिमेंट्स, ये इन दोनों के एटम ज्यादा होंगे. राइट? आर वी क्लियर टिल हियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके. So since we are saying that all four of these, the first four of these are what we call as organic molecules and biological molecules, right? They're hydrocarbons. तो इससे हमें क्या पता लगा कि अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई इन चारों के अंदर कौन से केमिकल एलिमेंट हमेशा होंगे, तो तुम बताओगे भाई हाइड्रोकार्बन है ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन तो हमेशा होगा इनके अंदर, इन चारों के अंदर. मेजरली किससे बने हुए? कार्बन और हाइड्रोजन से. उसके अलावा एक और एलिमेंट कौन सा होता है इनके अंदर हमेशा? ऑक्सीजन. इजी. डू वी गेट इट? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आयशा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स, molecules that are made up majorly of hydrogen and carbon. And where would you find them? You would find them, or they would be extracted from organisms. ठीक है. क्या तक बात समझ में आ रही है? आयशा बेटे, डू वी गेट दिस? ओके.
अब एक और चीज देखो, अब एक और चीज देखो मेरा बच्चा, तुम लोग आगे जाके, we'll come back here in a minute. At the end of the session, you'll probably be doing organic chemistry. So we have a branch of chemistry that we call as कौन सी वाली chemistry? Organic chemistry. तो केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कहाँ से आ गया? सर अभी तो आपने कहा कि भाई ऑर्गेनिक तो वो चीजें हैं जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म से आ रही हैं. सो व्हाट डज दिस ऑर्गेनिक और द वर्ड ऑर्गेनिक हैव टू डू इन केमिस्ट्री? पूरा तुम लोग के पास तीन चैप्टर्स, आई गेस 4 चैप्टर्स है. एल्केन्स, एल्कीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्कोहल्स एंड पॉलीमर्स, 5 चैप्टर है. देखो देखो देखो. अच्छा, what would you be studying in this topic? You would be studying about what? Crude oil and its extracts, right? कि भाई मैं क्या क्या क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ. अब मुझे एक बात ही बताओ, ये जो क्रूड ऑयल है, what kind of a fuel is crude oil? क्रूड ऑयल कैसा फ्यूल है? इट्स इम्प्योर ऑयल, ठीक है. और इससे एक पर्टिकुलर वर्ड आता है ना, इट्स एनी फ्यूल दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, इट्स कॉल्ड एज कौन सा वाला फ्यूल? हम्म. वेरी गुड मारुक. इट्स कॉल्ड एज अ फॉसिल फ्यूल्स. व्हाट इज अ फॉसिल? फॉसिल क्या होता है? व्हाट्स अ फॉसिल? फॉसिल आर डेड ऑर्गेनिजम्स, पुराना वो डायनासोर्स और उनके बाद as the years are passing by, those organisms, dinosaur plants that have died millions of years ago, when they went under the ground, the pressure under the earth crushed them and converted whatever they had into what? Into crude oil. तो देखो, एक बात याद रखो, मेरी गाड़ी जो चल रही है ना, द ऑयल दैट्स और क्रूड ऑयल से हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम. And petroleum once put into my car is giving it kinetic energy. So that energy might have belonged to some prehistoric animal. बात समझ में आ रही है? तो since fossils are remains of what? Organisms. We call this branch of chemistry that deals with fossil fuels or crude oil as what chemistry? Organic chemistry. तो यहाँ मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि okay, even in organic chemistry, the word organic basically refers to organism, whether alive or whether died, whether it died about, let's say, millions of years ago. Are we get it? Or do we get it? क्या हो गया मेरे अंग्रेजी को? खैर, ओके, वी डोंट नीड दिस एनीमोर. अच्छा, अब देखो, तो एक बात हमें क्या पता लगी कि भाई क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन सब के पास इन सब के पास 3 एलिमेंट्स, इन चारों के पास 3 एलिमेंट्स तो होंगे. कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. लेकिन जब हम प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं ना मेरे बच्चों, प्रोटीन्स के पास एक एडिशनल एलिमेंट होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोजन, राइट? और यही नाइट्रोजन किधर होगा हमारे पास? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर. पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? डीएनए और आरएनए. ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से डीएनए और आरएनए, राइट? अच्छा, उसके अलावा पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर एक और चीज क्या होगी? फॉस्फोरस. ठीक है, प्रोटीन्स के अंदर सल्फर भी होता है, लेकिन वो हमेशा नहीं होता, वो कभी कभार होता है. सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट इंक्लूडिंग इट. खैर, इसको देखो. अब अगर नाउ, व्हाई डू वी नीड टू रिमेंबर इट? इफ समबडी आस्क्स यू कि भाई गिव मी एन एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बोथ एट द सेम टाइम, तुम कहोगे भाई इन दोनों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, ये तीनों एलिमेंट्स इन दोनों के अंदर हमेशा होंगे. लेकिन अब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि भाई गिव मी एन एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स बट इट्स नॉट फाउंड इन द लिपिड्स, तुम बता दोगे सर नाइट्रोजन. गिव मी एन एलिमेंट इन द polynucleotides that, or give me the elements that are found in the polynucleotides that are also found in proteins. Sir, carbon, hydrogen, oxygen, or nitrogen. Give me an element that is found in polynucleotides but would never be found in carbohydrates, lipids, or proteins. Phosphorus. बात समझ में आ रही है? Uh, when I was in my O levels, so I had problem in remembering it. I think 9, 10 grade की बात है.
this was supposed to come in our exam and I had trouble, remembering it. लेकिन मैंने क्या याद करा, मैंने कहा ओके हम लोगों ने ना इसी सीरीज के अंदर पढ़ा था इसको. वी टॉक्ड अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट, फिर लिपिड्स पढ़े थे, फिर प्रोटीन्स पढ़े थे, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आखिर में जाके पढ़े थे. तो आई मेड I used to repeat to myself cho cho chon chomp. So I used to go like cho cho chon chomp, right? So cho cho means carbohydrates और lipids के अंदर हमारे पास क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. प्रोटीन्स में is going to be a chon, और chomp किधर होगा, chomp is going to be in the polynucleotides. So you can remember it like this as well. यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Yeah, made up Chinese. है. Okay, now अच्छा जी. Up now that we know all of this, we are going to start off with, and inshallah today we probably complete the carbohydrates. ठीक है? अच्छा. Whenever we talk about carbohydrates, मेरे बच्चों, carbohydrates क्या होते हैं? What are carbohydrates? Carbohydrates are basically what? They are sugars. ठीक है? Sugars को हम लोग लैटिन के अंदर क्या बोलते हैं? We call sugars as what? As saccharides. ठीक है? So we have sugars. Sugars are carbohydrates. सिर्फ ये वाली शुगर ही हमारे घर में चीनी है, सिर्फ वो चीनी नहीं है. Sugar is basically has a broader meaning. Sugars basically means anything that is carbohydrate is going to be a sugar, right? So whenever we say कि भाई this food contains sugar, we don't mean कि उसके अंदर चीनी है. It could be any of the carbohydrates, right? अच्छा, carbohydrates को लैटिन के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? Saccharides. आप इसको देखो. Whenever we talk about saccharides, अगर again एक छोटी चीज देखो. Let's go back here. We talked about these 4 molecules and all of them were polymers, right? What if I had to talk about the monomers? तो क्या मैं कहूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि okay, now I'm talking about the monomer of a carbohydrate, or would I say okay, now I'm talking about the monomer of fats and lipids, I'm talking about the monomer of proteins, of nucleotides, वो लंबा हो जाएगा. तो मैंने कहा कि मेरे पास जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर्स होंगे ना, I am going to start calling them as कौन सी वाली सैकराइड्स? मोनोसैकराइड्स. सिर्फ एक वर्ड से मुझे पता चल गया कि ओके ये मोनोमर है और ये कौन सी वाली फैमिली से बिलोंग कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट से. ठीक है? सो अब देखो, द वर्ड मोनोसैकेराइड मुझे 2 चीजें बता रहा है ना. सबसे पहली चीज मुझे क्या बता रहा है कि देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मोनोमर, और हम लोग किस चीज के मोनोमर के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोमर ऑफ द सैकेराइड्स, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. डज दिस मेक सेंस? अगर इसी तरीके से इफ यू वुड वांट टू टॉक अबाउट पॉलीमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो हम इसे नाम क्या दे देंगे? वी आर गोइंग टू से कि भाई जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में ज्वाइन अप होंगे तो वो मुझे कौन सा वाला सैकेराइड दे देंगे? दे आर गोइंग टू गिव मी अ पॉलीसैकेराइड. डू वी अंडरस्टैंड दिस? यहां तक बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? डू वी ऑल गेट दिस गाइस? अच्छा, आप इसी तरीके से मुझे बताओ, इफ आई वुड वांट टू जॉइन अप 2 मोनोसैकेराइड्स टुगेदर, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? अब मुझे बहुत सारी मोनोसैकेराइड्स जॉइन अप नहीं करनी. आई जस्ट वांट टू जॉइन अप 2 मोनोसैकेराइड्स. सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? आई एम गोइंग टू गेट अ व्हाट? अ डाइसैकेराइड. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? अच्छा जी, अब इसको देखिए, नाउ नाउ दैट वी नो दिस, अब let's talk about monosaccharides first. So what we are concerned about initially is the monosaccharides. ठीक है? अच्छा, अब अगर क्या हो गया तनीषा?
What's wrong? अच्छा, so now that we talk about monosaccharides, अब एक चीज देखिए, अगर मुझे कभी भी एक मोनोसैकेराइड चाहिए होगा, तो टू मेक अ मोनोसैकेराइड, there are some conditions that are involved. To make a monosaccharide, there are some conditions that are involved. ठीक है? क्या बस मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, दैट्स इट? तो सारे थोड़ी हैं। अच्छा, दो से ज्यादा होते हैं बेटे तो वो ओलिगो होता है, ओलिगोसैकेराइड, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वी जस्ट हैव मोनोसैकेराइड, दो हुए तो डाइसैकेराइड, दो से ज्यादा हुए तो वो पॉली हो जाएगा फॉर अस। ठीक है? खैर 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 खैर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, देखो, अगर हमारे, इफ यू वुड वांट टू मेक अ मोनोसैकेराइड, मेरे पास दो कंडीशंस आती हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या आती है कि भाई अगर तुम्हें एक मोनोसैकेराइड बनाना है, सो यू वुड नीड एट लीस्ट 3 कार्बन्स, एंड एट द मैक्सिमम यू कैन हैव 7 कार्बन्स। कहने का मकसद क्या हुआ कि if you have a molecule that has less than 3 कार्बन्स, चाहे वो 2 हो चाहे वो 1 कार्बन हो, it's not going to be a monosaccharide। वो कुछ और मॉलिक्यूल हो सकता है, वो मोनोसैकेराइड कभी नहीं हो सकता। ठीक है? सो मोनोसैकेराइड बनाने के लिए हमें एटलीस्ट कितने कार्बन चाहिए होते हैं? हमें एटलीस्ट 2 कार्बन, 3 कार्बन चाहिए होते हैं। और एट द मैक्सिमम में कितने कार्बन रख सकता हूं? आई कैन ओनली कीप अबाउट 7 कार्बन, राइट? दूसरी बात, what are the elements that are present in carbohydrates? Carbon, hydrogen and oxygen. इनकी arrangement किस तरीके से होगी? That's what we're supposed to know. So if we talk about their arrangement have to be in a particular formula. और वो formula क्या होता है कि भाई the carbon, the hydrogens and the oxygen are supposed to go by the formula CnH2O n, right? अब ये n क्या है सर? What is this n? This n is the number of carbons. ये n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स। कब सर? जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे ना, उतने हमारे पास ऑक्सीजन होगा, और उसका डबल हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। दिस इज गोइंग टू मेक सेंस, डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है? अब हमारे पास मोनोसैकेराइड्स की भी अलग अलग फैमिलीज होती हैं, राइट? सो लेट मी गिव एन एग्जांपल। भाई माँ, आई बिलोंग टू द अब्दुल जब्बार फैमिली, all of my siblings, we belong to the very same family, right? But let's say uh, Hamza, Hamza belongs to the Parekh family, right? We both are humans, isn't it? But we have different families. इसी तरीके से, I can have different monosaccharides, but they can belong to different families. What do their families depend on? Their families depend on the number of carbons that they have. हम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन्स उनकी फैमिलीज को नाम देते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मैंने कहा मेरे पास मोनोसैकेराइड की जो सबसे पहली फैमिली आती है, दोज आर कौन सी वाली शुगर्स? ट्रायो शुगर्स। ट्रायो शुगर में कितने कार्बन होंगे बच्चे लोग? हाउ मेनी कार्बन्स एम आई गोइंग टू हैव इन द ट्रायो शुगर्स? 3। वेरी गुड। Similarly, all of those monosaccharides that contain 4 carbons, they will come under the heading of कौन सी वाली sugars? Tetro sugars. ठीक है? They will come under the heading of कौन सी वाली sugars? Tetro sugars. All right. Here, those which have 5 carbons, वो 5 sides वाला shape कौन सा होता है? What do we call that particular shape? कौन सा गॉन होता है? पेंटागन। तो ये कौन सी वाली शुगर्स आ जाएंगी हमारे पास? पेंटोस शुगर्स। ठीक है? And the ones that have 6 carbons, they will be called as कौन सी वाली sugars? Hexose sugars. ठीक है? They will be called as कौन सी वाली sugars? They're going to be called as hexose sugars. ठीक है? Are we getting this? यहाँ तक बात समझ में आ रही सबके?
ओके, अच्छा, और 7 वाली हेप्टोस हो जाएगी, दैट्स वो हमें नहीं पढ़नी, यू गेट द पॉइंट राइट। सो बस दैट्स ऑल दैट्स नीडेड। अच्छा, अब नाउ लेट्स राइट द फॉर्मूलाज, इनके फॉर्मूलाज लिखते हैं। अब मुझे बताओ, ट्रायोस शुगर्स में कितने कार्बन थे? 3, राइट? तो इस N की जगह क्या आ जाएगा? 3। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन्स कितने होंगे हमारे पास? 3 2s आर 3 2s आर व्हाट? 6, एंड 3 1s आर 3। तो जितने भी हमारे पास ट्रायो शुगर्स होंगी, उनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उनका फॉर्मूला होगा C3H6O3। ऑलराइट, अच्छा, अब इसको देखो, अब देखो, लेट्स डू अनदर वन। टेट्रो शुगर्स हैव 4 कार्बन्स, तो N की जगह क्या लगा दोगे भाई? 4 लगा दोगे, ठीक है? तो हाइड्रोजन्स कितनी हो जाएंगी? 4 2s आर 8। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4, ठीक है? पेंटोस शुगर्स में 5 कार्बन हैं, तो N की जगह 5 आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H हाउ मेनी? वेरी गुड, 10 O5। एंड द हेक्सो शुगर्स that we have 6 carbons, तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? C6H what? वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, ठीक है? So this is how we have, depending on the number of carbons, we have the different families of the monosaccharide. Out of all of these families, the only family that we are going to be concerned with are going to be the family of कौन सी वाली sugars? Hexo sugars. हमें हेक्सो शुगर्स के अलावा कहीं आगे पीछे जाना ही नहीं है, ठीक है? We don't have to. Okay, देखो तनिषा, जितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, n is the number of carbons, right? मैं बता रहा हूँ ताकि हमें फॉर्मूला मेकिंग आ जाए, कभी कभी एमसीक्यू के अंदर आया था लाइबा। अच्छा, देखो तनीषा बेटे, जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, उससे डबल द नंबर हमारे पास क्या होगा बेटे? हाइड्रोजन। एंड वी वुड हैव द सेम नंबर ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। डू वी अंडरस्टैंड दिस नाउ मेरा बेटा? ओके, गुड इनफ, गुड इनफ। अच्छा जी, अब देखिए, अब हमारे पास नाउ, इफ आई वुड आस्क टेल यू, और इफ आई वुड टेल यू कि भाई हमारे पास हेक्सो शुगर की एक फैमिली है, तो फ्रॉम दिस you would get to know you would get to know कि how many carbons are we talking about? 6 carbons. And whatever sugar that is going to be involved in this family or is a part of this hexose sugars वाली family, उसका formula क्या होगा? C6H12O6. Do we get this? All right. अब हमारे पास now, if we are to list down the monosaccharides of hexo sugars, we have 3 monosaccharides. Now, ab yahan se we are going to follow the rule of 3. We will be talking about 3 monosaccharides, we'll be talking about 3 disaccharides, and we'll be talking about 3 polysaccharides. ठीक है? अच्छा जी, अब अगर हम लोग 3 monosaccharides के बारे में बात करें, हेक्सो शुगर्स के अंदर 3 मोनोसैकेराइड्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हमारे पास आती है कौन सी वाली शुगर? ग्लूकोज। The second monosaccharide that we have is what? Is fructose. The third that we have is what? It is galactose. आएंगे उस पर, वो भी आएगा मेरा बच्चा, ठीक है? So again, how many monosaccharides do we have? We have 3. कौन कौन सी? GFG, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोस, ठीक है? और इन तीनों का फॉर्मूला सेम है, क्या है? सिंस ऑल हेक्सो शुगर्स,
C6H12O6। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, सर वाई, लाइक if all three of them have the same formula, why do they have three different names? नाम क्यों बदल रहे हैं आप? फॉर्मूला तो सेम है सबका. What's the deal with it? What's the deal with the changing of the names? आमना, इसमें कितने कार्बन्स हैं? Sorry, इसमें कितने कार्बन्स हैं? How many carbons do we have here? हाँ जी आमना, how many carbons do we have in all of them? 6. तो ये कौन सी वाली शुगर्स हो जाएंगी मेरा बच्चा? वेरी गुड. डू वी गेट इट नाउ बेटे? ये वाली बात समझ में आई चंदा? ओके अच्छा, अब देखो, द रीजन इज अगेन, मैं थोड़ा सा तुम लोगों को थोड़ा सा ए लेवल्स पे लेके जाऊंगा. We have certain compounds which are called as isomers. Iso का मतलब क्या होता है? Same. These compounds have the same molecular formula. What is different in all of them are their structures. Different molecular formula, sorry, same molecular formula, different structures. अब again ये याद नहीं करना हमें, I'm just explaining this कि भाई why do they have different names. ये केमिस्ट्री में नहीं आएगा चंदा, दिस इज नॉट गोइंग टू कम इन केमिस्ट्री, आई एम जस्ट शोइंग यू द स्ट्रक्चर, ठीक है? खैर, अच्छा अब इसको देखो, अगर हम लोग ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देखें, एवरीथिंग इज द सेम. फर्क क्या है? फर्क क्या है? ग्लूकोज के पास इस वाले कार्बन का जो OH है वो नीचे है, H ऊपर की तरफ है. लेकिन गैलेक्टोज के अंदर इसी वाले कार्बन के पास उल्टा है, OH ऊपर चला गया, H नीचे आ गया. जस्ट दिस माइनर चेंज alters all the chemical reactions, right? जब एक और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसका केमिकल रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं फ्रक्टोज को देखूं, फ्रक्टोज के पास भी 6 कार्बन है, कार्बन 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसका शेप कैसा है? उसका शेप पेंटागोनल है, इवन दो इट हैज 6 कार्बन्स, राइट? इवन दो हेक्सो शुगर, उसका शेप अलग है. फॉर्मूला वही कि वही सेम है, वही ग्लूकोज वाला फॉर्मूला है. इससे हमें क्या पता लगा? इससे हमें क्या पता लगा कि भाई तीनों शुगर्स का फॉर्मूला सेम क्यों है और इनके नाम अलग अलग क्यों है, ठीक है? राइट. सो वी गॉट टू नो that all of these monosaccharides have a different name even though they have the same formula, because they have a different what? They have a different structure. ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? Does everyone get this? Okay, okay. Now अब देखो, so अब मैंने कहा, let's say भाई what I decide now is के भाई I want to join this monosaccharide or all of these monosaccharides with another one. So now what I want to do is I want to join up all three of these monosaccharides with another monosaccharide. So when I'm going to join two monosaccharides together, what am I going to get मेरे बच्चों? Very good. I'm going to get disaccharides. Now the process through which a disaccharide is formed is called as what? Condensation. Is called as what? It's called as condensation. ठीक है? Condensation क्या होता है? तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके. कंडेंसेशन, व्हाट इज कंडेंसेशन? जैसे कन्वर्जन ऑफ, अगर हम लोग एक नॉर्मल एवरीडे मिसाल लें
So it's basically the conversion of uh, what we call as the gaseous water vapors into liquid, है ना? क्योंकि जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में ज्वाइन अप होते हैं, ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में ज्वाइन अप होंगे, what they also release is a molecule of water. वो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी रिलीज कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमने इस प्रोसेस को नाम क्या दे दिया बेटे? कंडेंसेशन। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये वाली बात समझ में आ रही है? ऑलराइट, अच्छा। अब होता क्या है, नाउ देयर इज ओनली वन मोनोसैकेराइड दैट कैन जॉइन अप विद ऑल ऑफ देम। कौन सी? ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इन तीनों को ज्वाइन अप, इन दोनों को ज्वाइन अप कर दिया। मतलब व्हाट वी डिड वाज, आई जॉइंड अप टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज टुगेदर, आई जॉइंड अप अ मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज विद ग्लूकोज, एंड आई जॉइंड अप अ मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज विद ग्लूकोज, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस when two molecules of glucose they join up together by the process of condensation. The disaccharide that they give me is called as maltose, right? Whenever a molecule of fructose joins up with a molecule of glucose via condensation, the disaccharide that it gives me is what is sucrose. And whenever, ये तुम लोग मुझे बता दो, whenever galactose is going to join up with glucose, the disaccharide that it's going to give me is going to be what? Lactose. Make sense? ये सब याद करना अभी हो जाएगा। और इनके साथ साथ हमें क्या मिलेगा? एक मॉलिक्यूल ऑफ वॉट? वाटर। ठीक है, अब अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो याद डेफिनेटली करना है। एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? वी जस्ट गोइंग टू गो फॉर वेरी क्विकली फॉर अ रिवीजन। ठीक है, लेट्स ओपन अप अ न्यू पेज। अब मुझे एक बात ही बताओ, हाउ मेनी डाइसैकेराइड्स, हाउ सॉरी, हाउ मेनी कार्बोहाइड्रेट्स डू यू गाइस नो बाय नेम? नाम से कितनी कार्बोहाइड्रेट पता है तुम लोगों को? ब्रेड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। नाम से, like you know, I have boys and girls in my class, but I know your names. So carbohydrate is a general term. So what I want is, I want the names of how many carbohydrates? 6. हमें कितनी कार्बोहाइड्रेट्स का स्पेसिफिकली? ऑल कार्बोहाइड्रेट्स शुगर मेरा बच्चा। तुम लोग मुझे सोर्सेस बता रहे हो, यू नॉट टेलिंग मी द नेम्स। Rice, milk, all of them are what? They're sources of carbohydrates. They're not carbohydrates themselves. ठीक है? So far, we know how many carbohydrates by name? We know 6 of them. ठीक है, we know कितनी of them? 6 of them. We know 3 monosaccharides and we know the name of 3 disaccharides exactly. बात समझ में आ रही है? अब जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो, what are the 3 monosaccharides? GFG, come on. What are the 3 monosaccharides? Glucose, fructose and आखिरी वाली कौन सी थी? कौन सा वाला लैक्टोज था? Galactose, right? So one more time. Let's go with it one more time. So the monosaccharides that we have are what? GFG, right? कौन सी एक बार दोबारा? Glucose. This one is going to be fructose. Very good. And this one is going to be what? कौन सी वाली lactose? Galactose. ठीक है, very good. मोनोसैकेराइड्स याद हो गई। अब जल्दी से मुझे बताओ, अब अगर अगर नाउ इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू कि भाई मेरे पास डाइसैकेराइड्स कौन सी थी? So if I'm going to join up 2 molecules of glucose together, it's going to give me what? Maltose. Very good. Fruits are sweet. Fruits are sweet. So if I'm going to join up fructose with glucose, it's going to give me what? Sucrose. And if I'm going to join up glucose with galactose, if I'm going to join up glucose with galactose, what am I going to get? Lactose. हो गया याद? टू बी अंडरस्टैंड दिस? याद हो गया? कोई मसला यहाँ तक?
ठीक है, जस्ट वन लास्ट टाइम, एक बार और, एक बार और, एक बार और। सो जल्दी से इनिशियल्स बता दो मुझे। मेरे पास मोनोसैकेराइड्स कौन सी होती हैं? कौन कौन सी? ग्लूकोस, फ्रक्टोस, वेरी गुड। और तीसरी वाली कौन सी थी? गैलेक्टोस, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को ज्वाइन अप करूंगा तो मुझे कौन सी वाली डाइसैकेराइड मिलेगी? माल्टोस। इफ आई एम गोइंग टू ज्वाइन अप ग्लूकोज विद गैलेक्टोस तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ हाँ, गॉट यू गाइस। ग्लूकोज विद गैलेक्टोस मुझे क्या मिलेगा? लैक्टोस। इफ आई एम गोइंग टू ज्वाइन अप ग्लूकोज विद फ्रक्टोस फिर मुझे क्या मिलेगा? सुक्रोज। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम बैक हियर, लेट्स कम बैक हियर। अच्छा, अब अगर हम लोग इसी चीज को केमिकल फॉर्मूला में देखें, सो व्हाट डू वी सी इज दैट whenever we're joining up two monosaccharides of hexose sugar, so what we're basically doing is we're basically joining up two molecules of C6H12O6. So through condensation, what's going to happen is the disaccharide that I would get is going to be what? Or it's going to have what formula? मैं दो C6 को ज्वाइन अप कर रहा हूं ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे? C12। ऑलराइट। इसी तरीके से मेरे पास हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए? 12 + 12 इज 24, वेरी गुड। और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए मेरे पास? सो द फॉर्मूला should be what of a disaccharide? C12H24O12, double of this, isn't it? Amna, I think you forgot to add na. अच्छा, कम बैक है, ओके। अच्छा, लेकिन एक छोटा सा मसला है, एक छोटा सा मसला है। मसला ये है कि देखो, अभी तो मेरे पास ये पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है, राइट? बैलेंस्ड है। लेकिन जब भी हमारे पास कंडेंसेशन हो रहा है, मेरे पास एक और चीज क्या आ रही है इसके अंदर? एक मॉलिक्यूल ऑफ, इसको देखो जल्दी से, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी तो आ रहा है मेरे पास। सो अगर मैं यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बनाऊंगा, अब तो मेरी इक्वेशन बैलेंस ही नहीं रही। मेक सेंस? अब बात यह है कि वाटर का मॉलिक्यूल आया कहां से? दिस वाटर का मॉलिक्यूल केम फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल, इट जस्ट ब्रोक डाउन फ्रॉम दिस, राइट? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, if this molecule of water is produced when two monosaccharides are joined up together, how many atoms of hydrogen are present in a single molecule of water? How many atoms of hydrogen are present in a single molecule of water? Two. तो ये टू कहां से आएंगे? तो ये टू कहां से आएंगे? ये टू यहां से निकलेंगे। अब मेरे पास ये 24 हाइड्रोजन थे ना, उनमें से दो हाइड्रोजन मैंने निकाल लिए वाटर को बनाने के लिए। तो मेरे पास पीछे कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे बच्चों? 22, वेरी गुड। इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मेरे पास एक ऑक्सीजन भी तो है। अब मेरे पास यहाँ 12 ऑक्सीजन थे, उसमें से एक मैंने निकाल दिया वाटर बनाने के लिए, तो मेरे पास पीछे कितने ऑक्सीजन बच जाएंगे बच्चों? 12 थे, एक निकाल दिया वाटर बनाने के लिए, वेरी गुड मनाइल। 11। So the formula that the disaccharides are going to have is going to be C12H22O11.
All right. Do we get this? Along with a molecule of water. हर बार बनेगा, हर बार बनेगा. अच्छा, अब दो बातें और before we end. चलो, I think we should stop here. It's nearly time. Uh, Remind me in the tomorrow to talk about hydrolysis, and we'll talk about the sources of these, and we'll move on. ठीक है? So I hope you guys have a good day.